اور سفر کی دعا پڑھیں گے. سبحان اللہ سخر لنا هذا وما كنا مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جو مقامات میں ہم جائیں انشاءاللہ ہمارا 18 مقامات کی زیارت کا سفر ہوگا. ہر سبب یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقدس مقام ہے، یہ وہ مقدس پہاڑ ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے، تاریخ سے ہے اور حج سے ہے. ہر سبب یہاں پر ہر کوئی نہیں آ پاتا، یہاں پر وہی آتے ہیں جن کو اللہ پاک منتخب کرتے ہیں. اور وہ خوش نصیب ہیں کہ دنیا پہ لاکھوں اور کروڑوں کے مسلمانوں کی بستیاں آباد ہیں لیکن یہاں پر نہیں آ پاتے. یہاں پر وہ مخصوص لوگ آتے ہیں جن کو اللہ پاک منتخب کرتے ہیں، اللہ پاک اپنا مہمان بناتے ہیں. خاص میں انشاءاللہ ہماری پہلی زیارت ہوگی جبل سور، غار سور. مکہ کے سب سے بڑے پہاڑوں میں سے یہ بھی ایک پہاڑ ہے. اس کی اونچائی ہے سطح سمندر سے 5413 فٹ. ہاں سب آپ لوگ باتیں ذہن میں رکھنی ہے. میں گاہر رہے آپ سے پوچھتا بھی جاؤں گا. اگر مختصر کہتا ہے پھر مختصر بتاتا چلتا ہوں، پھر آگے بیٹھ جاتا ہوں جیسے آپ کہیں. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل ساری باتیں ذہن میں رہیں. تو ہاں سب اس کی پہلی زیارت ہوگی جبل سور، غار سور. جبل کی معنی ہے پہاڑ، جبل کی معنی پہاڑ، سور کی معنی پل. زمانہ قدیم جیسے ہماری بستیوں کا نام ہے، ان کے بھی زمانے قدیم میں اس جگہ پہ غار سور پہ گائے اور بیل چلا کرتے تھے. غار سور بیل والی بستی اور اس کے اوپر غار ہے، غار سور، جہاں پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی کے 3 دن اور 3 راتیں گزاری. ہر سبب اسی شہر مکہ میں، یہ مقدس شہر ہے، امن کا شہر ہے. نبوت کا امر آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں 40 سال گزارے. ہر سبب وہ 40 سال کی زندگی بہت بہترین تھی، بہت اعلیٰ تھی. مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے، صادق اور امین کہا کرتے تھے، اپنی امانت رکھوایا کرتے تھے. ہر سبب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا نبی مقرر کر لیا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے میرے پیارے نبی، اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو دین اسلام کی دعوت دیجیے. ہر سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے عمرہ کیا نا، ایک طرف صفا کی پہاڑی ہے اور دوسری طرف مروہ کی پہاڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو صفا کی پہاڑی کے گرد اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے بہت بڑا لشکر نکلے گا اور آپ پر حملہ کر دے گا تو کیا آپ لوگ یقین کر لو گے؟ تو ہر سبان اہل مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ یک زبان ہو کر بولے، ایک زبان ہو کر بولے، جی ہم یقین کر لیں گے، آپ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک کی طرف سے بھیجا گیا آخری نبی اور دین اسلام پر ایمان لے آؤ. ہر سبب جو ابھی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن گئے. پہلا پتھر ابو لہب کی طرف سے مارا گیا. آیات نازل ہوئی کہ ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ہر سبب ان گروپوں کی سربراہی ابو جہل کر رہا تھا. ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ہر سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو قریش قبیلے سے تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا. لیکن جب ایک قبیلے کے مقابلے میں 20 قبیلے آ جائیں تو ایک قبیلہ کم پڑ ہی جاتا ہے. ہر سبب ان لوگوں نے رائے کی کہ اگر محمد کو اب نہ روکا گیا تو یہ ہم پر ہیوی ہو جائے گا، کیوں نہ محمد کو مکہ سے نکال دیا جائے. ہر سبب سب قبیلے اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے. انہوں نے ایک میٹنگ کی،
शैतान भी मौजूद था इंसानी शक्ल में। सब राय दे रहे थे कि एक राय दी क्यों ये मोहम्मद जिधर भी जाएगा, अगर मक्का से निकाल भी दिया तो ये मोहम्मद जिधर भी जाएगा ये हम पर हावी हो जाएगा, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब यही वक्त है क्यों मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए ना उस बिल्ला। आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? हेलो आ रही है? हेलो आ रही है क्या? शैतान ने कहा हाँ ठीक है, मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। सबने वादा कर लिया कि आज रात को मोहम्मद के घर का घेराव करेंगे। मोहम्मद रात को नमाज के लिए बाहर निकलेंगे, नमाज बोला कत्ल कर देंगे। उस वक्त की रिवायत थी, लोगों की रिवायत थी कि घर में घुसकर कत्ल मुबारक झगड़ा नहीं करते थे क्योंकि औरतें और बच्चे खौफजदा बने हुए हैं। अगर रात की तारीखें थी तो उन लोगों ने घर का घेराव कर लिया। बताता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर किधर था। आप सफा मरवा करते हैं तो आपने बैतुल्लाह की तरफ नहीं निकलना, आपने अफजल दूसरी तरफ निकलना है। तो पहले साथ में आगे लाइब्रेरी कुतुब घर, वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जय प्रकाश वाला घर है। तो साथ में हमारे अबू जहल की हमाम कहते हैं वाशरूम को। अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके घर की जगह वाशरूम बना दी गई। चलिए अपने घर से निकलते हैं, मट्ठे में मट्ठे पड़ते हैं, सूफी यासीन की चंद यातें पढ़ते हैं, जहाँ से गुजरते हैं लोगों पर फेंकते जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल जाते हैं। 50 साल पहले यहाँ पर ये रोड नहीं थे, रोड थे नहीं थे। मैंने सब अपने लगी तुझे छोड़ रहे हो। यहाँ पर हसबन काले नकेलदार पहाड़ थे, काले नकेलदार पहाड़ थे। हसबन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर से इन रोडों को इख्तियार करते हुए हमारे सूर पर पहुंचते हैं। हसबन बाकी प्लान हमारा गाड़ी से नीचे उतर के होगा। आप सब बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है कि हम नीचे उतरेंगे, आपने ग्रुप की शक्ल में मेरे साथ रहना है, दाएं बाएं नहीं जाना। हमारा यहाँ पर बयान होगा, दुआ होगी, गार की ज़ियारत होगी और इंशाल्लाह फिर हम मैदान अरफात की तरफ आएंगे। वैसे में वापस आकर अपनी अपनी सीटों पर बैठना, दूसरे की सीटों पर नहीं बैठना। जैसे हमारी गाड़ी रुकेगी मैं भाइयों को कहूँगा आपने फिर नीचे उतरना। अभी लोग आ गए हैं। वो सामने बड़ा पहाड़ देख रहे हैं आप? बड़े बड़ा पहाड़ वो सामने बहुत बड़ा है। इसके ऊपर 2 टुकड़े पड़े हुए हैं, इस तरफ बड़ा टुकड़ा और इस तरफ छोटा टुकड़ा। बड़े पहाड़ पे 2 पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं, वो सामने वाले पे जो उनके दरमियानी रास्ता है, उसके नीचे है गार। गार का नीचे ये वाला है। अगर आप रुकू में जाएंगे तो आपको साफ वाज़ह दिखाई देगा कि आगे एक आदमी बैठा है या 2 बैठे। छोटी सी गार है, 1-2 आदमी बैठने की जगह है। इस गार का नाम है गारे सौर जबले सौर। सतह समंदर की ऊंचाई है 5413 फीट। भाई साहब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ इस गार पर पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव जख्मी हो चुके थे, लहू लुहान हो चुके थे। तो सदके जाऊँ सैयदना अबू बकर की शान पर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए और गार का सफ़र करते हैं। गार की ऊंचाई कितनी है? 5413 फीट। भाई साहब मेरे नबी कहते हैं कि अबू बकर है मेरे भाई, आपने भी मेरे साथ ही सफ़र किया है, क्या आप नहीं थके? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि या रसूल अल्लाह जिन कंधों पर नबूवत का वज़न होगा ना वो कभी कंधे थकेंगे ना वो कभी अबू बकर सिद्दीक़ थकेगा। भाई साहब गार के ऊपर जाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देखते हैं कि या रसूल अल्लाह आप गार के मुँह पर बैठ जाइए, मैं गार में दाखिल होकर गार की सफाई सुथराई का जायज़ा लेता हूँ। जब गार में जाते हैं तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ देखते हैं कि गार में सुराख है। आवाज़ आ रही है सब तक? गार में सुराख है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपना इमामा उतारते हैं, अपना सर वाला कपड़ा उतारते हैं, उसमें पत्थर देते हैं और सुराख बंद करते हैं। सब सुराख बंद हो जाते हैं और एक कपड़ा ख़त्म हो जाता है। फिर अपना कुर्ता उतारते हैं,
फिर सुराख बंद करते हैं, हत्ता के एक सुराख बाकी रह जाता है और कपड़ा ख़त्म हो जाता है। उस सुराख पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी एड़ी रख लेते हैं, पाँव की एड़ी रख लेते हैं और बैठ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाते हैं, थके होते हैं और हज़रत अबू बकर की सिद्दीक़ की गोद में सर रखकर सो जाते हैं, आराम कर रहे होते हैं और इतने में लोग पीछा करता कराते गार के मुंह पर पहुंच जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खौफज़दा हो जाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अहले मक्का के लोग तो गार के मुंह पर आ गए हैं। तो मेरे नबी कहते हैं कि अबू बकर तुम खौफ नहीं करो, तुम डरो नहीं, इस गार में अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाएंगे। भाई साहबान, जब वो गार के मुंह पर पहुंचते हैं तो अल्लाह पाक ने इस गार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करी है और अबू बकर की हिफाजत करी है। कोई फौज नहीं भेजी थी, लोग नहीं भेजे थे। अल्लाह पाक ने मकड़ी को हुक्म दिया कि जा गार के मुंह पर जाला बुन दो। मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतरी को हुक्म दिया अंडे दो, घोंसला बनाओ, अपनी गला को घेर दो। कबूतरे ने घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। अहले मक्का के लोग गार के मुंह पर पहुंचे, उन्होंने कहा अबू जहल सरबराही कर रहा था। भाई साहबान, वो लोग इतने तेज तराज थे कि जानवर की खुशबू सूंघ के बताते कि जानवर किस नस्ल का है। जब गार के मुंह पर आते हैं तो अबू जहल क्या कहता है, क्या लोगों आप मुझे गलत ले आए हो, ये जाला मोहम्मद की पैदाइश से भी पहले का है। अगर मोहम्मद इस गार में दाखिल होता तो ये जाला टूट जाता, कबूतरी के अंडे टूट जाते, भाई साहबान वो वापस चले जाते। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे कि इतने में एक सांप नमूदार होता है। ये दो मशहूर वाक़े हैं, एक मकड़ी वाला और दूसरा सांप वाला। आप सबने सुना होगा। तो एक सांप नमूदार होता है। वो सांप हज़रत ईसा के दौर का इंतज़ार कर रहा था। उसने सुन रखा था कि अल्लाह के नबी आएंगे, इस गार में क़ियाम करेंगे। वो दीदार नबूवत के लिए रुका हुआ था। रोज़ आता, गार में देखता और चला जाता। जब उस रोज़ आया तो सुराख बंद थी। सांप को यकीन हो गया कि आज अल्लाह के नबी तशरीफ़ ला चुके हैं। भाई साहब, सांप सब सुराखों से फिरता हुआ आखिरकार सुराख पर पहुंचा जहाँ पे इंसानी गोश्त मौजूद था। वो गोश्त किसका था? गोश्त किसका था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की एड़ी का। तो सांप ने कहा कि एड़ी साइड पर करो, मैंने दीदार करना है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरे इश्क में खलल पड़े, मेरे दीदार में खलल पड़े। गोद में चेहरा मुबारक था और दीदार किए जा रहे। भाई साहब, सांप ने डसना शुरू कर दिया। एक बार डसा, दो बार डसा, तीन बार डसा। दर्द की शिद्दत बढ़ गई। भाई साहब, सांप की फितरत होता है डसना, लेकिन वो सांप डस नहीं रहा था, वो अपना एहतजाज कर रहा था दीदारे नबूवत के लिए। भाई साहब, दर्द की शिद्दत बढ़ गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आंखों से आंसू निकले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए और कहने लगे, क्या अबू बकर, क्या तुझे मक्का छोड़ने का गम है? क्या तू अपनी बीवी बच्चों से उदास है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं है, कोई जहरीली चीज़ है, उस सब से मुझे काटी जा रही है, दर्द की शिद्दत बढ़ गई है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एड़ी साइड पर करो। सांप नमूदार होता है। मेरे नबी फरमाते हैं, क्या सांप तुझे मालूम नहीं था ये एड़ी किसकी है? तो सांप कहता कि या रसूल अल्लाह, मैं 550 साल से इंतज़ार कर रहा था दीदार के लिए। तो सांप सलाम पेश करके चला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लब मुबारक एड़ी पर लगाते हैं और अल्लाह पाक शिफा देते हैं। हमारे नबी ने दुआ की, क्या अल्लाह, मैं अबू बकर सिद्दीक़ से राज़ी हो गया, तू भी राज़ी हो जा। फरिश्ता नाज़िल होता है, कहता है कि या रसूल अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ कबूल कर ले। अबू बकर सिद्दीक़ इस गार में भी तुम्हारा साथी है और जन्नत में भी तुम्हारा साथी है। भाई साहब, हमारे नबी की दुआ जब कबूल हुई, इंशाल्लाह हमारी भी ज़रूर होगी। सब बहन भाई मेरे साथ दुआ करें।
साहबान ये हमारी ज़ियारत थी गारे सौर जबले सौर। भाई साहबान अगर आप इस पर गारे सौर पर जाना चाहें तो जहाँ पे हम रुके हुए थे इसके साथ थोड़ा आगे रास्ता जा रहा है, आप आगे जाएंगे तो पहाड़ों की कटी हुई सीढ़ियों पर जा रही है। भाई साहबान आप इस पर जा सकते हैं, जो जवान बहन भाई हैं उनको जाना भी चाहिए। भाई साहबान इस पे जाने का वक्त क्या है, आप अपने होटल से निकलेंगे तकरीबन 2-2:30 बजे रात को, 2-2:30 बजे। 15 से 20 मिनट किसी भी टैक्सी पर बैठेंगे तो 15-20 मिनट पे आपको इधर इस गार में पहुंचा देंगे, 10-15 रियाल लेंगे। भाई साहबान पहले आने का मकसद ये है कि आप कोशिश करें कि फजर की नमाज या तो ऊपर अदा करें या कहीं रास्ते में कर लें, क्योंकि यहाँ पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। नीचे की निस्बत गर्मी ऊपर ज़्यादा है, ऊपर पहाड़ है, तो इसलिए आप टाइम से निकलेंगे तो कोशिश करेंगे कि जब नीचे आए तो सूरज की किरणें आपको नीचे ही